partigiano, una mattina, bella ciao, 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 una mattina mi sono alzato, tacco tacco il padrone. ये है पशुपतिनाथ टेम्पल का मॉडल और ये है स्वयंभुनाथ स्तूपा का मॉडल। Alphabets of UAE. This is written in Arabic and these are pronounced as alif, ba, ta, sa, jim, kha, dal, zal, ra. हम कहते हैं we are going to provide 21st century skills to our students, and it's very essential that when we say that the world is an oyster and it is on your feet, so to prepare them for the competitive world. We have presented the various ranges of dirham over here, and they have various denominations such as from 10 to 1000, and 1000 dirham is equals to 24,000 rupees. हर एक क्लास को एक एक अलग अलग कंट्री दिया गया, एक अलग अलग देश दिया गया और बच्चों को कहा गया कि रिसर्च कीजिए उस देश के विषय में, उसका आरंभ से लेके उसके विकास तक की सारी चीजें आप दिखाइए। आज हम जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में पहुंचे हुए हैं और यहाँ एक्सप्लोर द वर्ल्ड नाम का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में लगभग 22 देशों को रिप्रेजेंट किया गया है, अलग अलग देशों के झंडे लगाए गए हैं और उस देश की खासियत को बताया गया है कि उस देश का राष्ट्रगान क्या है, वहाँ का खाना क्या है, वहाँ की कल्चर क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है। हर कुछ एक कमरे में समेट दिया गया है। जितना कोशिश हो सका है बच्चों ने किया है, रिसर्च करके किया है। हम सारे क्लास में विजिट करते हैं, कुछ देशों को हम आपको विजिट करके दिखाते हैं कि बच्चों ने क्या कुछ तैयार किया है। आइए क्लास विजिट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं यूएई में। यहाँ देखिए जिस तरह के वहाँ पे कपड़े पहने जाते हैं, वहाँ के शेख जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उसको दर्शाया गया है और देखिए यहाँ पर उसी तरह के कल्चर को दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ दरवाजे को उसी तरीके से सजाया गया है। क्या बोल रहे हो? शब्द खैर which means good morning. ओके, सो गुड मॉर्निंग कैसे कहा जाता है वहाँ पर। देखिए ये अरेबिक लैंग्वेज है, उस तरीके से जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है उसे दिखाया गया है। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से बच्चों ने क्या क्या बनाया है वो समझते हैं। शबाउल खैर, इसका मतलब मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, Introduction. I am Raghav Raj. ये क्या बनाया? We try to represent about the stadium of UAE football team. So we try to give the more facts and more achievements that was for UAE team. So we try to represent the UAE football team current captain, that is Khalid Aisa, and achievements. Ma'am, in 1990, UAE football was able to qualify for FIFA World Cup, and in 1996, as the host in Asia Cup, UAE becomes the runner-up, and in 2015, UAE comes third in Asia Cup. Thank you. आपने क्या बनाया? Shabaul Khair, isme Himanshu Raj, and I have made a model of camel racing, representing camel racing. In this camel racing, the ones who ride the camels are known as jockeys, and there are many more cam racers. And the camels actually run up to 45 to 65 kilometers per hour, and the circular track is about 300 to 500 meters long. And the ones who win the Camel League, they get prize money of up to 80 million dirhams and luxury cars. And the camels who won the race, the royal sheikhs, and they buy the camel which won the Camel League. देखिए क्या क्या खासियत है कैमल रेस के बारे में इन्होंने बताया है। आप लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? करेंसी रिप्रेजेंट कर रही है। वहाँ का जो मुद्रा है, वहाँ का जो पैसा है उसको रिप्रेजेंट क्या क्या है? They are known as dirhams, and each dirham is 24 rupees approx. And एक दिरहम इंडिया का 24 रुपीज अप्रॉक्स। Yes. आपने क्या क्या दर्शाया? We have presented the various ranges of dirham over here, and they have various denominations such as from 10 to 1000, and 1000 dirham is equals to 24,000 rupees. Is that करेंसी आप क्या बता रहे हो? Markpan, I am Ashvi. So today we are going to talk about the traditional dance forms of UAE. So The first dance form is the Haravian dance form. This dance form is very famous in Dubai. It is a traditional dance form of Dubai. In this dance form, two rows of men standing in front of them, and they have sticks in their hands. As per their ranks, they started dividing itself.
The second one is the Aila dance form, and it is also known as the stick dance, and it is the most famous traditional dance in the Dubai and the UAE, and it represents the world. The third one is the Haban dance form, and the name of this dance in Dubai is derived from the major string instruments used for providing the melody and tempo, which is predominated in wedding celebrations and such more events, which is performed by a group of 3 members. ओके तो देखिए डांस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही हैं छोटे छोटे बच्चे। आप क्या बता रहे हो? We are explaining about the national flower of UAE and the national animal of UAE. नेशनल फ्लावर क्या है? National flower is the Tribulus hominis. Tribulus hominis is the national flower of United Arab Emirates. It belongs to the Zygophyllaceae plant family, and it can survive and has the capability to survive the harsh conditions of the UAE deserts. And this is the national animal of UAE. Its name is Arabian oryx. The Arabian oryx is the national animal of UAE. It is a species of antelope known for its long, straight horns. It is well adapted to desert areas and survive on minimal water. It once became extinct in 20th centuries, but the scientists of UAE revived this species. Thank you. आप क्या बता रहे हो? I'm explaining about the inventions of UAE. First of all, we have the Burj Khalifa. It's the tallest building in the world, and it's about 2,722 feet in height, and it holds the title since 2004. Then we have the Emirates Mars mission. It is an United Arab Space Agency's exploration mission to explore the Mars orbit, and it was launched on 20th July 2020, and it reached the Mars orbit on 9th February 2021. Then we have the solar park. It's about 77 kilometer in area, and it was implemented by the Dubai Electricity and Water Authority. Then we have the products and brands of UAE. First is the La Consure, All Things Mochi, Bil Arabi and Gaya. Thank you. थैंक यू। आप क्या बता रहे हो? Assalamu alaikum. It's me Adna Singh, and today we are talking about all the major musical instruments of the UAE, and this one is known as Nai, this one is Rababa, and this one is Oud. So the total number of days taken to get them prepared is around 1 month, because they all are made up from all the natural resources like water and wood. And as we all know that Dubai is facing a major scarcity of natural resources and like water and wood. So that's the major reason that they take such a long time period to get prepared. आप भी म्यूजिक हाँ. आप तो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? We are representing the famous foods of UAE. This is the semaiya, known as vermicelli kheer. This is kunafa. This is biryani. And these are the dry fruits which is famous in Dubai, and also it is famous in Dubai for its local and tourists who visit Dubai. And the most famous thing that in Dubai is that Dubai exports their high quality of dry fruits to all over the world, like raisins, cashew nuts, and walnuts, etc. It's me Nerhan. Ismin Sahil. It's me An. And we are going to tell you about the famous personalities of UAE. So Nerhan will tell you about the Abdul Rahman, who is the footballer in UAE. And I am going to tell you about the Hussein Sajwani, who is Emirate billionaire of UAE. And Ansh will tell you about the sake of Dubai. So we will begin from Nerhan. So let's start. Abdul Rahman Ibrahim Al Mazem. He was born on 9 November 1974, and he was a professional footballer. First, he grew up with a passion of football while Emirati football was still in the verge of development. And at first, he started his career by joining the Al Shab club. Then, after that, he joined Ajman club before retirement, and he has represented UAE in many international events and is known as one of the best defenders in the world. Now, passing on to Sahil. So Hussein Sajwani, who born in Dubai in 1952, he doesn't have a good family background. His father used to had a modest shop, and he used to sell imported goods from China. From there only Hussein Sajwani's spirit ignited and chooses to be an entrepreneur. So now Hussein Sajwani
has Hussain Sajmani is an Emirate billionaire of UAE and having a net worth of $18.2 billion. And he is a founder of Demek Properties, and he plays a major role in developers of UAE. Sheikh Mohammed bin Rashid was born on 15 July 1949. He is an Emirati politician and he belongs to a royal family. He is the current ruler of Dubai and he serves as the Vice President and Prime Minister of UAE. Thank you. आप क्या बता रहे हो? I'm the ambassador of UAE. As you can see, this is the map of UAE, and it is a federation of 7 emirates: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al Quwain, Ras Al Khaimah, and Fujairah. It shares its borders with Oman in the southeast, and southwest it shares Saudi Arabia. Area is 83,600 kilometers square. Capital is Abu Dhabi. Currency UAE dirham. Motto is Allah, Nation, President. Type of government federal semi-constitution monarchy. Official language is Arabic. Many people speak Arabic over there. कि आप इसको एक बार इस चार्ट को देख लीजिए, ये सारे डिटेल्स जो हैं यूएई का रिप्रेजेंट किया है बच्चों ने, और यहाँ पर और भी कुछ कुछ खास मॉडल्स बनाए गए हैं जो यूएई में आपको देखने को मिलते हैं। ये बुर्ज खलीफा यहाँ पर बनाया गया है और भी वहाँ के डेजर्ट को दिखाया गया है, वहाँ की जो गगनचुंबी इमारतें हैं उनको दिखाया गया है, वहाँ की मस्जिद को दिखाया गया है। तो बहुत सारी दुबई वैसे भी जब भी अरब कंट्रीज़ की बात होती है बहुत सारी खासियत वहाँ की हमें देखने को मिलती है। It's me Aradhya Chalan and I am going to explain you about the famous monuments of UAE. As you can see that this is Museum of Future. This is known for as it depicts the future of UAE and its every floor is like a film set. And that is Hotel Atlantis. Hotel Atlantis is known for its unique structure and it cost 1.5 billion to make it. It's also known for its interactive floors like Aquaventure Water Park. That is Burj Al Arab. It has total 60 floors and it took 115 billion. It's the only 7-star hotel in the whole world. And that is Burj Khalifa. You must be knowing that it's the tallest building in the world. Its height is about 828 meters and it has total 163 floors. It also holds the numerous world records like having the highest restaurants and etc. And that is Seaside Mosque and it's the largest mosque of the country. Thank you. यहाँ पर एक और बच्ची है, वो क्या दिखा रही है? आप क्या दिखा रहे हैं? I am representing the script of UAE. These are the alphabets of UAE. This is written in Arabic and these are pronounced as Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Kha, Dal, Zal, Ra, Za, Sin, Sheen, Sod, Zod, Ta, Zad, Ain, Gain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Noon, Va, Ha, Hamza, Ya. And सब क्या वहाँ का अल्फाबेट है? हाँ, we can say that these are the alphabets. They use these scripts for writing. These are the Arabic one. We don't write this in English form, but we wrote it because we want to explain it to you all. And these are some relationships and relationships of UAE. These are the pronunciation and the meanings of that word. As you learn this, would you like to write something? आइए इटली में प्रवेश करते हैं और जानते हैं ये बच्ची इटली के स्टाइल में आपको वेलकम करेगी। कैसे करते हो बता दो। ओके, चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और जानते हैं कि इटली के बारे में क्या कुछ खास है। देखिए ये बच्चे जो हैं इटली को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, इटली का फ्लैग लगाया है। यहाँ से समझते हैं कि क्या कुछ बच्चों ने तैयारी की है। आप लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम लोग स्पोर्ट्स, इटली का स्पोर्ट्स हाँ, क्या है? साइकिलिंग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, आप क्या रिप्रेजेंट? स्पोर्ट्स, बता दो क्या क्या है जल्दी। फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल, साइकिलिंग, टेनिस। अच्छा, ये सब इटली में खेले जाते हैं। ये सब इटली में खेले जाते हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? We are representing the food menus of the country Italy. The menus of the Italy that Italian people. Cupcakes, pastries, sandwiches, and pizza. They all are eaten in Italy.
Every people eat this and has once tried in Italy. इंडिया में भी खाते हैं Yes, ma'am. ये? In India, this snacks is also famous. अभी क्या क्या आप लोगों के पास? In the stock of the food, we have pastry, sandwiches, and pasta. ओके, कब का कितना टाइम लगा ये सब रेडी करने? At least 1 hour. 1 hour से ये सब कुछ रेडी But और we are planning from 1 week. 1 वीक से Yes. आप लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? Monuments of Italy. ये पास्ता. अच्छा, फूड रिप्रेजेंट कर रहे हो आप लोग भी. देखिए ये बच्चियां भी फूड रिप्रेजेंट कर रही हैं और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो म्यूजिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे समझते हैं. आप लोग क्या कर रहे हो? हम गाना गा रहे थे. गाना गा रहे हो आप लोग? म्यूजिक यस. क्या है वहाँ का म्यूजिक? बेला शाह. क्या इसको गाते हैं क्या? हाँ, वो लोग ये प्रोटेस्ट करने के लिए सॉन्ग को गाते हैं. आप गाकर सुनाओ. अच्छा ठीक है. Partigiano, una mattina, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato, raccontato l'impatro. Partigiano, una mattina, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato, raccontato l'indandro. जब वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो इस गाने को गाते हैं. हाँ. अच्छा चलिए, यहाँ पर ये बच्चा क्या बनाया है इसे पूछते हैं. ये क्या है? ये फ्लैग एवोल्यूशन है इटली का. इससे क्या होता है? इससे हम लोग को पता चलता है कि इटली के कितने फ्लैग्स चेंज हुए हैं या फिर कितने बार वो लोग रिपीट हुए हैं, वो पता कर सकते हैं. अच्छा, इटली में इतने सारे फ्लैग्स चेंज हुए हैं? नहीं, इससे और 10 और फ्लैग्स है, लेकिन हम लोग उससे इंक्लूड नहीं कर पाए. अच्छा, ये देखिए इस बच्चों ने ये सब जानकारी कहाँ से मिली सारे? हम लोगों ने रिसर्च किया था गूगल से और हम लोगों ने रिसर्च करके इन 10 फ्लैग्स को चूज किया और हम लोगों ने इसे यहाँ पर स्टैंड पे लगा दिया. देखिए यहाँ पे इटली के करेंसी को दिखाया गया है और ये करेंसी, फ्लैग, म्यूजिक, खाना सब कुछ इटली का रिप्रेजेंट किया गया है. ये हम आपको नेपाल की दुनिया में ले चलते हैं. यहाँ देखिए बच्चे सबसे पहले वेलकम कर रहे हैं जिस तरीके से नेपाली कल्चर में किया जाता है और हम यहाँ अंदर आएंगे और बच्चों से जानेंगे कि उन्होंने क्या कुछ तैयार किया हुआ है, क्या कुछ तैयारियां हुई है. ये कहाँ का इंस्ट्रूमेंट है? ये नेपाल का इंस्ट्रूमेंट है, नेशनल इंस्ट्रूमेंट. इसका नाम मादल. ओके, देखिए यहाँ पर ये नेपाल का क्या खाना है? सेल रोटी और सेल रोटी का चटनी चटनी है और ये सेल रोटी. दाल रोटी. ये नेपाल का खाना है. हाँ. इसको किसने बनाया? इसको नाइसा ने बनाया. नाइसा ने बनाया. ये सब करने में कितना टाइम लगा आपको? मैक्सिमम 1-2 वीक. इन 1 वीक शायद. 1 वीक लगा. 1 वीक लगा है. देखिए और यहाँ पे बच्चों ने क्या बनाया है इनसे पूछते हैं. ये क्या है? ये है पशुपतिनाथ टेम्पल का मॉडल और ये है स्वयंभुनाथ स्तूपा का मॉडल. इसको किसने बनाया? इसको मैंने बनाया और इसको काव्यांश ने बनाया. काव्यांश कितना टाइम लगा? कम से कम 1-2 घंटा. कितना? 1-2 घंटा. 1-2 घंटे में बन गया. और टीचर्स ने भी सपोर्ट किया? नो. खुद से बना लिया आपको? यस. क्या? और मदर हेल्प की है. मदर हेल्प की थी. आपने क्या बनाया? वो सब कुछ लिखा हुआ आपने बनाया? ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला? ये मैंने इंटरनेट से लिखा है. इंटरनेट से लिखा है. और देखिए ये बच्चे, आप लोग क्या बने हो? हम लोग फेमस पर्सनालिटीज बताने. देखिए वहाँ पे है भी. अच्छा, ये नेपाल के फेमस? हाँ हाँ. देखिए जैसे कि बलभद्र कुमार है, गौतम बुद्धा है. गौतम बुद्धा तो आपको जानती हूँ. ये बलभद्राचार्य है. ये एक नेपाली पोएट थे बहुत पहले. 18 टाइम के थे, 1800s के. और ये चेंजिंग हो गया. ओके, आप क्या कर रहे हो? मैं भी फेमस पर्सनालिटी. फेमस पर्सनालिटी को बता रहे हो. किसी एक के बारे में बताओ. तेंजिन नॉन्ट्री. ये क्या करते थे? ये फर्स्ट मैंने जो क्लाइंब करे थे माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने क्लाइंब किया था. ये छोटे छोटे बच्चे, आप लोग क्या कर रहे हो? हम लोग नेपाल के फेमस स्पोर्ट्स बता रहे हैं. स्पोर्ट्स? क्या स्पोर्ट्स है नेपाल? वॉलीबॉल और गिल्ली डंडा.
गिल्ली डंडा वहाँ का फेमस, One of the वन ऑफ द। आप क्या कर रहे हो? नेपाल गिल्ली डंडा नेपाल में बोलते हैं डांडी बियो, और डांडी बियो में 15 मैक्सिमम प्लेयर्स होते थे, और उसमें बड़ा वाला स्टिक है डांडी और छोटा वाला स्टिक है बियो। ये सब किसने बताया आप लोग? ये सब हम लोग पढ़े हैं सीख के। Okay, ये बच्चा क्या कर रहा है? आप क्या कर रहे हो? ये नेपाल का करेंसी है। क्या क्या करेंसी है? वहाँ का ये सब कौन कौन से नोट? ये 1000 का है, ये 500 का है, ये 100। सबसे कम वाला कितने का? 1। 1 रुपीज का नोट है। अभी चलता है वहाँ? हाँ, चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे और छोटे छोटे बच्चे, आप लोग क्या कर रहे हो? I am a diplomat and I am going to say about Nepal. ओके, नेपाल के बारे में कुछ बताओ। Nepal is a landlocked country in South Asia. It is mainly situated in Himalayas but also includes parts of the Indo-Gangetic Plain. Kathmandu is the nation's capital and its longest city. Nepal is a multi-ethnic, multilingual, multi-religious and multicultural state with Nepal as the official language. Thank you. थैंक यू। ये सब देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और ये लोग नेपाल के कल्चर को दिखा रहे हैं। और अब हम आपको दूसरा देश भ्रमण करवाते हैं। अब हम आपको मलेशिया की दुनिया में ले चलते हैं। देखिए एक बच्चा मलेशिया का बोर्ड लिए हुए खड़ा है और वेलकम कर रहा है सभी का। हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां चल रही है। ये देखिए ये मलेशिया का डांस है। बच्चे मलेशिया के डांस को परफॉर्म कर रहे हैं और पूरी तरह से कल्चर को दिखाया गया है। ये बच्चे मलेशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनसे समझते हैं कि क्या कुछ मलेशिया में लगाया गया। आप लोग अभी डांस कर रहे थे, ये जो मलेशिया का डांस है, यस। क्या कुछ आप लोगों ने मलेशिया में खास किया है? हम लोग ने पूरे क्लास को मलेशिया में चेंज किया है और यहाँ पर हम लोग ने ट्विन टावर और टूरिज्म की चीज़ें लगाई हैं। फूड को भी रिप्रेजेंट किया है? फूड को इसने रिप्रेजेंट किया है। वहाँ का एक ठो ट्रेडिशनल ड्रिंक है, उसे इसने रिप्रेजेंट किया है। और वहाँ का क्या कल्चर है, क्या भाषा है, क्या लोग, मैंने इसमें लिखी है। क्या है बता दो। Knowledges of Malaysia. Malaysia is the Southeast Asian nation with a rich history, diverse culture, and a thriving economy. Its federal constitutional monarchy comprised of two regions separated by the South China Sea, Peninsular Malaysia and East Malaysia. Kuala Lumpur serves as the capital of it and the seat of the federal government. History. Malaysia stretches back 1,000 years with evidence of occupation dating back at least 1.83 million. Others notable facts. Number 1. Kuala Lumpur is the national capital and the country's largest city. थैंक यू थैंक यू। इतना कुछ आप लोगों ने रेडी किया हुआ मलेशिया का। ये डांस सीखने में कितना टाइम? ये डांस सीखने में हम लोग को एक दिन 2-3 days 2-3 days में रेडी हो गया। आप लोगों को ये सब रेडी करने में टीचर्स भी सपोर्ट किया? यस। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इन्होंने मलेशिया को रिप्रेजेंट किया है। मलेशिया का खाना हो, मलेशिया का डांस हो, मलेशिया का कल्चर हो, सब कुछ इन लोगों ने तैयार किया है। Tell me about Sri Lanka. What are you make? What time you have taken to this create? We have taken a lot of time. Yesterday, then also yesterday. In 13th we have made it the outside that board, and in 14th we made it our class decorated our class. In 15th then we added some details in our classes. What are the culture you shows here?
which shows that martial arts, how they do martial arts. Example Angapura, and the food, famous food. Example Sambol, idli, idli, sambar, dosa, veg biryani. They India helps Sri Lanka also in friendship. और कितने आपको टाइम लगे ये सब रेडी करने में? टीचर्स ने सपोर्ट किया? हाँ, टीचर्स ने सपोर्ट किया, बहुत टाइम लगा हम लोग को। सबसे ज़्यादा तो वो डोर के लिए, उसमें हम लोग को 3 दिन लगा था बनाने में। डांसेस वगैरह भी? हाँ, डांसेस में हम लोग को बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा था। कितने लोगों की टीम है जो ये सब रेडी किया? बहुत लोगों की टीम है, जैसे इसने बनाया, उसने बनाया, मैंने बनाया, सब लोग ने बनाया मिलके। आपने क्या बनाया? मैंने कोलंबो यूनिवर्सिटी ये रहा, और ये है गौतम बुद्धा गोल्डन टेम्पल के लिए, और ये है दो वुडन आर्ट डियर का, और ये है सिगिरिया फोर्ट, और ये है एक और गौतम बुद्धा नॉर्मल, और ये है एक डॉल जो श्रीलंका वाले लोग बनाते हैं। यही सब बहुत सारे मैंने रिप्रेजेंट किए। सब किसने बनाया? मैंने तो ये सब नहीं बनाया, लेकिन ये मेरा ही है, और वो भी मैंने ही बनाया है, और वो जो घर है ना दोनों, वो भी मैंने ही बनाया, और भी बहुत सारी चीज मैंने ही बनाया। ये सब कुछ श्रीलंका? यस मैम। कितना टाइम लगा ये सबको रेडी करने? मैम 5-6 दिन लग गए। 5-6 दिन लग गए। आपका नाम क्या है? ईशान सिन्हा। और अब चलते हैं अपने देश भारत, मेरा भारत महान देश में। चलिए, सबसे पहले हमारा जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे दोनों बच्चे नमस्ते के साथ अंदर सभी का स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए दरवाजे को पूरे भारत के थीम पर सजाया गया है, भारत का तिरंगा लगाया गया है, भारत की चीज़ों को दर्शाया गया है। अंदर आते हैं और बच्चों से समझते हैं कि बच्चों ने क्या कुछ तैयार किया है और कितना समय उन्हें लगा है। यहाँ देखिए सबसे पहले एक बच्ची है, इसे समझते हैं। क्या बनाया? मैंने एक हटिया बनाई है। हटिया हमारे देश की सबसे आरामदायक घरों में से एक मानी जाती है। क्या बनाया आप? ये एक कल्चर बोर्ड है जिसमें हमारे पूरे संस्कृति दिखाई जाती है, जैसे कि हमारी पेंटिंग्स, नृत्य और फेस्टिवल्स। इधर अगर हम लोग देखते हैं पेंटिंग्स में, तो ये मिथिला पेंटिंग है, हमारी फेमस बहुत है, और ये बाहर देशों में भी बहुत ज़्यादा ही डिमांड है। इससे पहले यूज़ किया जाता था स्ट्रॉ, बैम्बूस, कॉटन से, और नेचुरल कलर यूज़ किया जाता है। आजकल के लोग आर्टिफिशियल कलर यूज़ करते हैं इसको बनाने में, और ये डॉट एंड लाइन से बनती है। जब 1997 में मिथिला में ड्रॉट आया था, तो उधर भुखमरी की बहुत ज़्यादा ही थी, तो एक वुमेन ने ये पेंटिंग लगाया था जिसमें ये डॉट एंड लाइंस का उन लोग यूज़ किया था, और ये गॉडेसेस और बहुत सारे चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता था उधर। और फिर अचानक से एक न्यूज़ रिपोर्टर आए थे उधर, तो उनको इनके बारे में पता चला, और उन्होंने पूरे दुनिया में इसका वो किया, तो इसलिए बहुत फेमस है। और ये हमारे सारे कथक मतलब इंडिया का जो कल्चर है उसको आपने रिप्रेजेंट किया है। ये सब ये मिसाइल किसने बनाया? सब मिसाइल मैंने बनाया। This are proud of our India. It's BrahMos. It's made by India and Russia. Its name consider of Indian river name Brahmaputra and Russian river name Moscow. This is Agni 5. The range of 2,500 kilometers to 2,800 kilometers. Its velocity is 2.8 Mach and 2.5 tons. It is weight, and it can carry 1,800 of warhead, nuclear warhead. And this is our Nirbhay cruise missile, all-weather and cruise missile with long range of 700 kilometers to 1,000 kilometers. चलिए यहाँ पर देखिए बच्चे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो आप लोग? इधर मैं यहाँ पे प्रसिद्ध स्थल रिप्रेजेंट करने वाली हूँ।
ये हमारा ताजमहल है। ये हमारे आगरा में स्थित है। ये शाहजहां ने बनवाया है। ये हवा महल है जो राजस्थान जयपुर में स्थित है। इसे हवाओं का महल भी कहा जाता है। ये हमारा लाल किला है। लाल किला पुरानी दिल्ली में स्थित है। इसको भी शाहजहां ने ही बनवाया है। ये हमारा गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल हमारा अमृतसर पंजाब में स्थित है। ये सिख लोगों के लिए बनाया गया है। ये हमारा विक्टोरिया मेमोरियल है। विक्टोरिया मेमोरियल क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया गया है और ये कोलकाता में स्थित है। ये हमारा इंडिया गेट ओके, और आप लोग करेंसी भी रिप्रेजेंट कर रहे हो क्या? देखिए, ये सब कुछ जो भारत के भ्रमणशील स्थान है उसको दिखाया गया है। करेंसी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो? ये भारतीय मुद्राएं है। 500, 200, 100, 50, 20, 10, 2 रुपये, 5 रुपये और कई भी रुपये है हमारे देश में। ये सब देखिए, भारत की जो मुद्राएं हैं, भारत की जो करेंसी है उसको दिखाया गया है, भारत की म्यूजिक को दिखाया गया है, भारत की डांस को दिखाया गया है। और यहाँ के फेमस पर्सन के बारे में कौन बताएगा? फेमस पर्सन। Good morning, everyone. And this is our famous personalities of India. And he is M.K. Gandhi, known as his full name is Mohandas Karamchand Gandhi, and he is known in India as father of nature. जितने भी फेमस पर्सनालिटीज है उसके बारे में आप लोग बता रहे हो, किसी एक के बारे में? He is missile man. He is our missile man of India, Dr. APJ Abdul Kalam. उनकी क्या खासियत है? He is our missile man. He had created various types of missiles and gave India a long time of. ओके, चलो ठीक है। देखिए, ये जो फेमस पर्सनालिटीज हैं भारत की उसको दिखाया है इस बच्चे ने, और यहाँ पर इससे समझते हैं क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो। Ma'am, it is an akhand Bharat that shows that it will not be broken into the any parts. So it will also start. This means that it is a set pin that shows that it is a power of unity, and they show that a dance form. This dance form show that it is a culture and it is a games which we play in our Indian country, and in Madhubani painting it is, and it is Shri Ganesh who are the god of our world, and it is a dance form of Gujarat, and you know that it is a Chhat who do the state, it is Chhat. ओके, तो भारत की जो कुछ खास चीजें हैं उसको आप लोगों ने दर्शाया है। वहाँ भारत के फूड को भी आप लोगों ने बताया है कि क्या क्या फूड है, क्या क्या फूड है, एक दो बता दो। डोसा है, भाकर बड़ी है, और ये गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, और ये डोसा है, बिरयानी है। बाजी, ये बहुत कुछ है। चलो, इंडिया का बहुत सारा खाना है, हम लोग खाते ही है। इंडिया को हमें समझने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब जानते हैं कि भारत में क्या है। Ma'am, we are representing BCCI. Ma'am, this is the logo of Indian cricket team. Ma'am, full form of BCCI is Board of Control for Cricket in India. Ma'am, this is the logo of Tata IPL, where all states play to win their cups. अभी तो आईपीएल चल भी रहा है। Yes, ma'am. तो आईपीएल चल भी रहा है और कल से फिर से शुरू होने वाला है। कल 17 तारीख है और फिर से आईपीएल शुरू होगा। इसको बच्चों ने रिप्रेजेंट किया है यहाँ, और भारत के कल्चर को समेट कर दिखाने की कोशिश की है। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन है जो हम लोग को हमारे क्लास में 10 दिन लगे थे उसको बनाने के लिए। हमने इसके लिए 4 घंटे दिए थे, मुश्किल से, इतनी मुश्किल से बनाया। हमने 20 स्लाइड्स को बनाए। हमने इसमें सब कुछ बताया कि इंडिया का सारा कल्चर कि क्या क्या इंडिया में हुआ था, सारे स्पाइसेस बताए इंडिया के, और यहाँ पे इंडिया का सब कुछ रैंक वैंक बताया है, और यहाँ पे इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स बताए हमने। इंडिया की रैंक पे रैंक बताई होगी, और हमने बताया कि कैसे नरेंद्र मोदी ने हमारी इंडिया को कैसे हमारे इंडिया को 5th GDP से 4th सबसे खतरनाक ताकतवर कंट्री बना दी है। इसमें आप लोगों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। हाँ, एकदम इतने बढ़िया से हमने सारे एम्पायर्स लगाए इंडिया के, कैसे मराठाओं ने मुगलों को उड़ाया, इस वॉर को दिखाया। हाँ, किसमें थी? हाँ, और हमने दिखाया कैसे मौर्यन एम्पायर थे जो हमारा सबसे ताकतवर एम्पायर था। चलिए, तो बच्चों ने काफी मेहनत की है। 4 दिन को कितने टाइम लगे? 10 में लग गए होंगे। 10 दिन 10 दिन लग गए। बताया कि 4 घंटे में इसने ये तैयार किया है। 10 दिन से तैयारी कर रहे थे इसको रिप्रेजेंट करने की, और फाइनली बच्चों ने भारत को समेट कर दिखाने की कोशिश की है। हमारे साथ GD गोयनका पब्लिक स्कूल की एक और टीचर है स्निग्धा। इनसे समझते हैं कि जो एक्सप्लोर द वर्ल्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसे ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजन किया इसकी क्या खासियत?
when we speak about NEP 2020, whenever that we speak about experiential learning, हम कहते हैं we are going to provide 21st century skills to our students, and it's very essential that when we say that the world is an oyster and it is on your feet, so to prepare them for the competitive world, it's very essential that we bring various cultures, imbibe and implement that inside of the students. When we speak about holistic development, we speak about various approaches that a student has, his perspective, the way that he thinks and perceives the day-to-day learning that we provide them in today's scenario. So it's very essential that the child has this sort of a reflection that he puts up in front of him. There's a lot of, say, peer teaching and learning that they get through doing these kind of programs at school. There's so much of competitive building also that takes place. So the child, when we speak about a holistic overall development, I think Goenka, the ethos that we are reflecting is very much tampered when we speak about keeping them inside of the class. So it's very essential to take them out, sort of give this kind of an exposure to the outside world. When my child tomorrow goes for any kind of different ventures in his life, he's fully prepared, he's gone through this, he's had an idea of the exceptional way in which he's done these projects in his school. So this is what the teaching that we try to imply and try to make sure that the child practices in our school. इस प्रोग्राम को लेकर कितना एक्साइटमेंट था बच्चों में, टीचर्स में? Oh my God, I cannot tell you, since the past 1 month, there's only been noises and discussions and various kinds of different kinds of conversations that students have been holding, different kind of research work that they've been doing, teacher discussions, peer discussion, group discussions are going on, the kind of lectures and the classes that we are delivering. In that, the child is trying to ask us, ma'am, you tell us, how can we make sure that this particular chapter could be instilling the kind of exhibition that we are putting up. So it's a wonderful approach. You can see the children, they're glad, they're happy, they're ecstatic, and they're taking this as a learning experience in their life. मजा आया पूरे A lot. We had so much fun organizing, programming, all the discussions that we took up. It was great fun. And, we want to thank our school for taking such innovative developmental experience bearing exhibitions for all of us at school. Thank you so much. हमारे साथ जेडी गोयनका पब्लिक स्कूल की टीचर हैं सुष्मा मैम, हिंदी पढ़ाती हैं। इनसे समझते हैं इस पूरे प्रोग्राम का क्या मतलब था और क्यों इसे ऑर्गेनाइज किया गया। मैम, आज आप लोगों ने एक्सप्लोर द वर्ल्ड एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसमें किस किस देश को रिप्रेजेंट किया? G20 में जितने 22 कंट्रीज आ रहे हैं उन सारे देशों को हमारे बच्चों ने रिप्रेजेंट किया है। जब ये प्रोजेक्ट हमें मिला था हमारे प्रिंसिपल सर से, तब हमारे लिए एक नया था, उत्सुकता भी थी। फिर हर एक क्लास को एक एक अलग अलग कंट्री दिया गया, एक अलग अलग देश दिया गया और बच्चों को कहा गया कि रिसर्च कीजिए उस देश के विषय में, उसका आरंभ से लेके उसके विकास तक की सारी चीज़ें आप दिखाइए। तो हमारे बच्चों ने, आपने अगर क्लास घूमे होंगे तो आपने देखा होगा कि हमारे बच्चों ने प्रारंभ से शुरू किया, एकदम आदि से शुरू किया और एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश की है। देश में क्या है, उसकी सुंदरता क्या है, विशिष्टता क्या है, उस देश का राष्ट्रगान क्या है, वहाँ के प्रसिद्ध लोग कैसे हैं, वहाँ के त्यौहार कैसे, सब कुछ दिखाने की कोशिश की है। समय बच्चों के लिए कम था, पढ़ाई भी करना था उन्हें, साथ में ये प्रोजेक्ट भी करना था। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, हमने भी बहुत इंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा। कब ये प्रोजेक्ट मिला था? हम लोगों को ये प्रोजेक्ट बताया गया था समर वेकेशन के समय, ठीक है, और उसके बाद नहीं, समर वेकेशन के समय नहीं, ये तो समर वेकेशन अभी आएगा। ये हमारा जब पुराना सेशन ख़त्म हो रहा था उस समय हम लोगों को बताया गया था ये चीज़। तो उस समय हम बताया गया, बच्चे प्रमोट हो गए, दूसरी क्लासेस में चले गए, थोड़े बच्चे शफल भी हो गए। फिर से हमें जब नया सेशन शुरू हुआ अप्रैल में, हमें बताया गया कि ये प्रोजेक्ट करना है और इसका टाइम दिया जाएगा। सर ने उस समय इन्फॉर्म कर दिया। फिर ये जो मंथ शुरू हुआ हमारा, इस मंथ में फिर हमें कहा गया कि नहीं, आप ज़ोर शोर में लग जाइए। और आपने देखा होगा कि ये जोर शोर का नतीजा है, सारी क्लासेस की सजावट आप देख रहे हैं। क्या कुछ बच्चों ने कैसे तैयारियां की? पूरा लग गया एकदम। सर, मैम, एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ, ये जो प्रोजेक्ट सर ने दिया ना,
बच्चों में एकता देखने को मिली। तुम ये करो, तुम वो करो, मैं ये खोज के लाता हूँ, मैं वो खोज के लाता हूँ, सब मिला के किया। अब बहुत कुछ देखिए क्लास में जो टीचर्स ने नहीं सोचा, बच्चे सोच कर आए, खोज कर लेकर आए। हमारा भी नॉलेज इन्हेंस किया, बच्चों ने ही। हाँ, तो बहुत बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया। थैंक यू मैम। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in